अकाउंटिंग पहला सिस्टम जी डबल एंट्री सिस्टम. फॉर एवरी डेबिट देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट क्रेडिट. डबल एंट्री सिस्टम के अंदर जी हम हर एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट. दैट इज व्हाई द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑलवेज कम्स आउट इक्वल. जब आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो उसका डेबिट और क्रेडिट का टोटल इसीलिए मैच करता है बिकॉज वी फॉलो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग. आइए जी, double entry system is a system of accounting which recognizes and records both aspects, debit and credit, of a financial transaction. At the time of recording a transaction, one aspect is recorded on the debit side and the other aspect is recorded on the credit side. For example, when the goods are purchased for cash, goods are acquired and in return cash is paid. In this transaction, two aspects are involved: receiving goods and paying cash. Under the double entry system, both the aspects are recorded. The system is based on, please underline, on which concept your double entry system is based. The answer is dual aspect concept, and it is universally applied in accounting. Means wherever accounting is done, doesn't matter on which part of the earth you are, you will follow double entry system. चाहे वो developed world की accounting है, चाहे वो developing world की accounting है. Features of double entry system जी, पहला, it maintains a complete record of. Second one, it recognizes twofold aspect of every transaction, that is the aspect of receiving as well as giving. In this aspect, in this system, one aspect is debited and the other one is credited following the rules of debit and credit. हम modern approach follow करते हैं. This duality is the base of double entry records. Since one aspect of a transaction is debited and the other one is credited, the total of debit is always equal to the total of credits. It helps in establishing arithmetical accuracy by preparing trial balance, जो हम लेजर के बाद बना चुके हैं. Stages, 3 stages हैं जी. पहली स्टेज का नाम पढ़ें. Recording the transactions in. Second, third one जी, closing the books and preparing what? Advantages जी, पहला, scientific system of recording business transactions है जी. as compared to the single entry system, it helps attain the objectives of accounting, जो कि दो ही हैं, to find out correct financial performance and correct financial position. complete record of transaction, जब हम एक transaction में enter हो रहे हैं उसके दोनों aspects को हम record कर रहे हैं. that is why we are recording complete record of transaction. It is a complete record as it results in showing correct income or loss, assets and liabilities. Next, बोल के सुनाओ जी, निन्नी नहीं आती उससे. By the use of this system, arithmetical accuracy of accounting work can be established by preparing, determining profit or loss by preparing profit and financial position is ascertained by preparing details for purpose of control. The system permits accounts to be maintained in as much detail as necessary and therefore provides significant information for the purposes of control. Comparative study is possible. एक साल का रिजल्ट दूसरे साल के रिजल्ट के साथ कंपेयर कर सकते हो और जो चेंजेस के रीजंस हैं उन्हें आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हो. हेल्प्स द मैनेजमेंट इन. नेक्स्ट प्लीज. Detection of frauds and misappropriations. Frauds and misappropriations are minimized since complete information about all assets and liabilities is available. It is because of these advantages that double entry system is extensively used. हाँ जी, डबल एंट्री सिस्टम में एक ट्रांजैक्शन के कितने एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड होते हैं? कौन कौन से? सेकेंड सिस्टम इज सिंगल एंट्री सिस्टम. अब इसे सिंगल एंट्री सिस्टम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड. आपका पूरा एक चैप्टर, द लास्ट प्रैक्टिकल चैप्टर ऑफ योर बुक, इट इज नोन एज अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, सिंगल एंट्री सिस्टम. सिंगल एंट्री सिस्टम, एज द नेम सजेस्ट, आपकी ट्रांजैक्शन के एक एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करता है, इज अ मिथ. सिंगल एंट्री सिस्टम में कुछ ट्रांजैक्शंस के दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड होते हैं, कुछ ट्रांजैक्शन का एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड होता है और कुछ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड ही नहीं होती. बेसिकली सिंगल एंट्री सिस्टम दो चीजों पे चलता है, एक कैश बुक जो आपका अगला प्रैक्टिकल चैप्टर होगा, और पर्सनल अकाउंट्स. आई होप आपको पर्सनल अकाउंट्स मालूम है. नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव.
पर्सनल अकाउंट जिसमें डेटर का अकाउंट आ गया, क्रेडिटर का अकाउंट आ गया, ओनर का अकाउंट आ गया, दैट इज कैपिटल. सो दिस इज सिंगल एंट्री सिस्टम. इट इज नॉट अ साइंटिफिक मेथड. ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है. ये सिर्फ छोटे बिजनेसेस फॉलो करते हैं जिनकी ऑलमोस्ट सारी ट्रांजैक्शंस कैश पे होती हैं, जिनके ज्यादा फिक्स्ड एसेट्स जो हैं वो नहीं होते. क्योंकि आप किसी भी आप सारी ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो, इसलिए आप अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स को डिटरमाइन नहीं कर सकते. आप ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते. इस सिस्टम के अंदर हम ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट भी नहीं बनाते हैं. इस सिस्टम के अंदर ट्रेडिंग और P&L की जगह एक और चीज बनाई जाती है जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, और बैलेंस शीट की जगह एक चीज बनाई जाती है जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. इन डिटेल हम डील करेंगे जब हम चैप्टर पे पहुंचेंगे. आइए क्वेश्चन सेकंड आइटम. सिंगल एंट्री सिस्टम आल्सो नोन एज ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स मे बी डिफाइंड एज एन इनकम्प्लीट, अंडरलाइन कर लीजिए जी, इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम. इन दिस सिस्टम ऑल ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड ऑन. In some transaction, both aspects of the transactions are recorded, while in other, either one aspect is recorded or not recorded at all. Instead of maintaining all the accounts only, please, one marker आ जाएगा. Which accounts are maintained in single entry system? Personal accounts and cash book are maintained under this system. The accounts maintained under this system are incomplete and unsystematic, and hence therefore are not reliable. Since all transactions are not recorded under this system on double entry basis, trial balance cannot be prepared. As a result, P&L account and balance sheet can also not be prepared. आपका चैप्टर खत्म हो गया जी थ्योरी का. आपको क्या आता है वो भी पता चलेगा जी. प्लीज क्वेश्चंस पहला पढ़ें और जवाब दें. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग रिलेशनशिप बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग. सुना नहीं जी? साथ में टिक भी कर लें जी. सेकेंड क्वेश्चन, बाकी भी चेक कर लो जी. Which of the following is not a subfield of accounting? Subfield of accounting का मतलब जी कल किया था मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग. यहां पर है नॉट अ सबफील्ड ऑफ अकाउंटिंग. बुक कीपिंग इट इज नॉट अ सबफील्ड. अकाउंटिंग का पार्ट ही है बुक कीपिंग. Which of the following is not recorded in the books of accounts? अपॉइंटमेंट ऑफ, बिकॉज अभी आपने उन्हें सैलरी पे नहीं की. जब सैलरी पे करोगे वो बुक्स में रिकॉर्ड होगा. बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स. फोर्थ, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड फिफ्थ वन जी लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन इज. सिक्स्थ क्वेश्चन जी बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू. ट्रांजैक्शन नंबर 7 जी अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग ऑफ जी only financial transactions. Transactions are posted into ledger account from which book? Which of the following is not a business transaction? Question number 9 ji. D part. Why so? Next, which is the advantage of accounting? Please बाकी भी पढ़ लीजिए. Shows the present value of business. No, it doesn't show the present value. अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड प्राइस लेवल चेंजेस. ये एडवांटेज नहीं है, ये डिसएडवांटेज है. अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट, इज ऑल्सो नॉट एन एडवांटेज बट अ लिमिटेशन. द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज, चेक कर लो जी, तीनों चीजें हैं. सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, नेट प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन. 12th, which of the following is incorrect? अकाउंटिंग साइंस भी है, आर्ट भी है, पास्ट और फ्यूचर दोनों से कंसर्न रखती है. मॉनेटरी टर्म्स है, लेकिन पहला पार्ट कह रहा है अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद. नो, इट इज कंसर्न्ड ओनली विद. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विद अकाउंटिंग. पढ़िए जी. डी पार्ट जी रिकॉर्डिंग आ गया, समराइजिंग आ गया, एनालाइज आ गया और कम्युनिकेशन भी आ गया जी. 14th part जी, which of the following is not an internal user of financial statement? Internal user, मैनेजमेंट इंटरनल यूजर ही है जी. मैनेजर भी इंटरनल यूजर है. एम्प्लॉय इज एन एक्सटर्नल यूजर. लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग इंक्लूड्स all of these. Ignores qualitative element, involves subjectivity, ignores price level changes. सब limitations हैं.
Cost of goods manufactured is determined by qualitative characteristics of accounting includes गलत, true and fair, reliability, understandability and comparability. 18th जी, which of the following is not a qualitative characteristic of accounting information? 19th one जी, use of common unit of measurement and common format of reporting promotes. यस, अगर आप सेम अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को ईयर ऑन ईयर फॉलो करोगे तभी आप अपनी एक साल की परफॉर्मेंस को पिछले साल की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर कर पाओगे. नेक्स्ट, which qualitative characteristic of accounting information is reflected when accounting information is clearly presented? हाँ जी, आई होप आपने छोटी क्लासेस में किए होंगे assertion and, पता है assertion and reason. चेक कर लीजिए, आपको ऊपर 4 ऑप्शंस दे रखे हैं. पहला ऑप्शन है आपकी assertion ठीक है, रीजन भी ठीक है, लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. सेकंड में assertion ठीक है और रीजन आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. थर्ड में आपके पास दोनों चीजें इनकरेक्ट हैं. फोर्थ में आपके पास रीजन assertion करेक्ट है और रीजन इनकरेक्ट है. पढ़िए जी पहला क्वेश्चन, assertion प्लीज बोल के सुनाएं. बताइए जी, अकाउंटिंग इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, इज द assertion करेक्ट और नॉट? ओके, रीजन प्लीज. नीड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू मेक डिसीजन. हाँ जी, ठीक है, आपके यूजर्स जो हैं उन्हें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए डिसीजंस के लिए, बट इसका अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस से कोई लेना देना. सो ए पार्ट assertion इज करेक्ट बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. नेक्स्ट, हाँ जी, सेकेंड assertion. हाँ जी, ठीक है, assertion ठीक है जी. रीजन, हाँ जी, ठीक है, फिर दोनों चीजें. assertion is correct and reason is a correct explanation of assertion. थर्ड वन जी, अकाउंटिंग का ही आपको डेफिनेशन दे रखा पूरा. सो assertion is correct. रीजन चेक करें, रीजन ठीक है जी, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि ठीक ही नहीं है. हाँ जी, तो फिर डी पार्ट, assertion is correct and the reason is incorrect. हाँ जी, फोर्थ, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज एन अकाउंटिंग सिस्टम बाय विच बोथ एस्पेक्ट्स आर रिकॉर्डेड. ओके, सिंगल एंट्री सिस्टम इज अ सिस्टम अकाउंटिंग विच बोथ एस्पेक्ट्स मे और मे नॉट बी रिकॉर्डेड. ये भी ठीक है, लेकिन इसका assertion से कोई लेना देना. So assertion and reason are correct, but reason is not the correct explanation of assertion. Next, accounting has a wider meaning than bookkeeping. बोलो जी, ठीक है. बुककीपिंग का फंक्शन रिस्ट्रिक्टेड आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग तक. बोलो जी, इसीलिए अकाउंटिंग का स्कोप जो है वो बुककीपिंग से वाइडर है. बी पार्ट इज द आंसर जी. क्वेश्चन नंबर 6, अकाउंटिंग में बी इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल बायस. Yes, in some situation choice has to be made from alternative accounting policies. Correct जी. B part is the answer. Answer दीजिए जी. Competency based question, question number 1 MCQ. Hurry up. Which limitation of accounting states that accounting statements are prepared at a historical cost? Accounting ignores price level changes. 3 stages of accounting are collection, processing and reporting. Reporting का मतलब जी communicate करना to the users of accounting information. थर्ड पार्ट जी, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज जनरेटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ, सुना नहीं जी, बुक कीपिंग. इफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन डजंट मीट द नीड्स ऑफ द यूजर्स इन डिसीजन मेकिंग, व्हिच ऑफ द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज वायलेटेड? रिलायबिलिटी नहीं जी, रेलिवेंस. उनके लिए रेलिवेंट ही नहीं है, उनकी हेल्प ही नहीं कर पा रही है डिसीजन लेने में. नेक्स्ट वन जी, अंडर विच स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड? समराइजिंग. हाँ जी, आगे दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट, इनकरेक्ट, पहली करेक्ट दूसरी इनकरेक्ट, दूसरी करेक्ट और पहली इनकरेक्ट. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6, बुक कीपिंग स्टार्ट्स वेयर अकाउंटिंग एंड्स? अकाउंटिंग हिस्टोरिकल इन नेचर एज इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द करेक्ट वर्थ ऑफ द बिजनेस. तो पहली इनकरेक्ट है जी और दूसरी करेक्ट. नेक्स्ट, reliability means the information given in the financial statements is based on evidences free from errors and also bias. ठीक है.
रिलायबिलिटी इज अ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, जल्दी बोलो। तो ये जी आपका चैप्टर नंबर 1 फुल फ्लेज्ड फिनिश्ड विद ऑल द बैक एक्सरसाइज डन। बंद करके चलाना मंजीत।